Let us start with business standard. Yes, sir. So, sir, in today's business standard, I have read about news related to FMCG, in which it is stated that Supreme Court of India has ordered union government to finalize the finalize the rules related to FMCG products. And the another news I have read about that Andhra Pradesh has made a committee uh, which analyze the effect of tariff on the seafood business of Andhra Pradesh, because it is the largest exporter in India of seafood. And sir, I have read many articles about the Trump's tariff policy that he halted the uh, reciprocal tariffs till 19 days, 90 days, sorry. And sir, I have a doubt in the today's newspaper. I have read a news related to financial inclusion, misuse of financial inclusion by NBFCs. But sir, I didn't get the article well. What was the article? Sir, in the article, RBI criticized the NBFCs to regarding to misuse of the financial inclusions. So how they are misusing? Anything written? No, sir, it is only the statement. No, no, written. You should see inside that article there is a written the reason behind this that fund is being not utilized properly. So you have said FMCG. What is FMCG? Uh, Sir, FMCG stands for fast moving consumer goods. In this category, the major products like packaged foods, beverages, and certain electronic products and household things are come in this category, which is quickly used and cheaper in price. Full form you can tell. So, sir, fast moving consumer goods. Okay. What is financial inclusion? Sir, financial inclusion is a concept which ensures that the banking and financial services is the uh, the banking and financial services reach to the lower and weaker section of the societies. Who is the lower and weaker section of? Sir, which lower annual income middle class group, lower middle class. What is the level of income under which you can decide that he is lower and he is up? Sir, I am not sure about it, but like if one can earn 40 day per rupees, so it is upper the cream. It will be above the creamy layer. How many? 40 rupees per day. 40 rupees per day. No, this is not correct. Sir, I am not sure about it. What do you know about NBFC? Sir, NBFC stands for non-banking financial services, uh, which provide term deposit services like insurance and yes, which provides insurance related services. NBFC. Yes, sir. NBFC provide insurance related stuff. Yes, sir. No, correct yourself. You are reading the new that PDF. Yes, sir.
Open the NBFC column. Sir, NBFCs provide banking services without meeting any legal definition of a. They even does not hold a banking license. So where is the written insurance service? Sorry, sir. What about right to freedom? Sir, right to freedom is a fundamental right which is guaranteed by our Constitution of India. It provide us six freedoms like freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of association, freedom of movement, and freedom of right to equality. And yes, sir. It is essential. It is essential right which enable us to speak freely, uh, which uh, which is necessary to we can say necessary for the growth of nation and society also, and growth of necessary for the growth of individual as well. But in recent time we have seen that the this right is misused by some communities like in Sahin Bagh and in the Kisan Andolan, which is protested at Sindhu border, Punjab. We can't say that this protests were legal because they were affected the major portion of society by restricted the roads, and many other situations has been made at that time. But sir, also sir, this right it uh, sir, it is the duty of our the peoples also to ensure that every person's right is secured. Repeat conclusion. Yes, sir. So, sir, the fundamental rights are essential for the growth of individuals and also necessary for the growth of society. But many times we have seen that these rights are misused by some communities. Like we have two major example like Sahin Bagh and the Kisan Andolan, where the rights of other person has been encroached by some peoples on the name of on the name of human right, and this is not we can't say that these protests were legal because they affected the major portion of society. So it is the duty of the person also to ensure that the right of other person is not affected. Okay, but keep it concise. It is alright, but keep it concise. Yes, sir. Let me know if my screen is. Yes, sir, your voice is not audible properly. What is It disinflation? is sir, disinflation is the gap of the. Yes, this is disinflation is the gap of the inflation rate. Like first, the inflation is hiked by 50%, and the after that, the inflation is again increased. So the gap is that gap is called disinflation. What is premium of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana? The
premium of Pradhan Mantri Suraksha Yojana is around 20, 30 rupees, 37 rupees. 20 rupees per annum. Okay, so 20 rupees. So let us move with balance of payment. Balance of payment is a statement जिसमें इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे हम ट्रेड करते हैं तो उसका ब्यौरा होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जिसमें इन एज इंडिया एज एन सिंगल एंटिटी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज अ सिंगल एंटिटी कितना ट्रेड किया, यानी इंडिया बाकी देशों से कितना सामान लिया, बाकी देशों को कितना सामान दिया, साथ ही कितनी सर्विसेज उसने ली बाहर से और कितनी सर्विसेज दी। इन द सेंस आईटी, आईटी में अगर आप हो तो फाइनेंस एंड बैंकिंग जो होती है वो सर्विस कैटेगरी के अंदर आती है, और कोई गुड आप कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं वो गुड्स के अंदर आता है। तो सर्विस के अंदर आईटी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब सर्विसेज के अंदर आते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, या आपका कोई रिलेटिव बाहर रह रहा है वो कुछ पेमेंट अपनी इंडियन पेरेंट्स को कर रहा है समझिए, तो फॉरेन मनी तो आ रही ना बाहर से, तो उसको भी हम बीओपी के अंदर कंसीडर करते हैं। बीओपी में बेसिकली दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड इन विजिबल्स यानी इंपोर्ट करना, हम कोई चीज कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका ब्यौरा होता है। हम किसी देश को कोई चीज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका ब्यौरा होता है। ट्रेड इनविजिबल मतलब कोई आदमी बाहर रह रहा है, कमा रहा है, वो अपने माँ बाप जो यहाँ रह रहे हैं इंडिया में उनको पैसे सेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड इनविजिबल। और सर्विसेज में जो ट्रेड होती है वो भी ट्रेड इनविजिबल के टाइप ही होती हैं। बट बेसिकली मतलब जो ट्रेड के अंदर होता है वो सर्विसेज भी आता है, बट इनविजिबल इन द सेंस जो मनी आती है, बाहर का रेसिडेंस देता है अगर वो। कैपिटल अकाउंट क्या क्या इंक्लूड किया होता है? पी नोट्स। पी नोट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है। एफडीआई मैंने आपको बता रखा है। एफपीआई क्या होता है? अगर कोई स्टॉक मार्केट खरीदता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं इसको। कोई इन्वेस्टर आया स्टॉक मार्केट खरीदा, तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है एफपीआई, लेकिन एफआईआई क्या होते हैं? वो इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रेड कितना बैलेंस्ड है। ट्रेड इन द सेंस जो मैं सामान बाहर से लिया और कितना सामान मैंने दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि मैं कितना व्यापार अच्छे से कर रहा हूँ। बाहर से मैंने 1 करोड़ का सामान लिया लेकिन 1 लाख का सामान ही बाहर दिया, तो मेरा ट्रेड सही नहीं है। दिस थिंग इज कॉल्ड ट्रेड का बैलेंस। डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, समझिए एसबीआई बैंक है, कल को गवर्नमेंट चाहती है कि मैं एसबीआई बैंक को डिस इन्वेस्ट करूं, यानी अभी कोई भी बैंक सरकारी कब हो सकती है? जब 50% से ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तभी हम उसको गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट इंटिटी बोलते हैं। कल को अगर गवर्नमेंट, समझिए 51% अभी एसबीआई का शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो एसबीआई सरकारी बैंक है, कल को 5% गवर्नमेंट शेयर बेच देती है, तो हम बोलते हैं 5% गवर्नमेंट हैज डिस इन्वेस्टेड इन द एसबीआई, ऐसा बोला जाएगा। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? बेसिकली म्यूचुअल फंड एक बकेट होता है जिसमें कई प्रकार के एसेट्स होते हैं, यानी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समझिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, तो आप केवल एक स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक्स भी होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी होती है, मतलब सब कुछ मिक्स होता है। एक चीज अगर ऊपर जाती है म्यूचुअल फंड के एक हिस्से में, यानी म्यूचुअल फंड का अगर 50% पार्ट ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है मार्केट में, तो 50% नीचे आएगा तो बैलेंस रहेगा, ऐसी चीजें होती हैं।
नेक्स्ट इज एनपीए क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट एनपीए? Yes, sir. It is non-performing asset. Hello, sir. कैन यू डिस्क्राइब दिस? Yes, sir. Suppose, sir, bank lends the money to someone, and the person didn't return the money under the period of time. So this is called non-performing assets. इन व्हाट इज दैट पीरियड ऑफ टाइम? Sir, like any person borrow the money for 1 year, and he is not he not returns the money, so it is called non-performing assets in the नॉट फॉर 1 ईयर, दिस इज after 90 the one डेज. year. Yes, sir. यू कैन सी द सेम डेफिनेशन इज रिटर्न, बट इफ 90 डेज के अंदर पैसा रिटर्न नहीं आया है तो हम उसको बोलते हैं एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन. Sir, after the limit of loan, after the यस. duration of loan. अरे, Yes, sir. लोन ड्यूरेशन इन द सेंस, आज आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है? आज Yes, आपने sir. 1 लाख का लोन लिया है और उसकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1 अप्रैल को ड्यू है. अब 1 अप्रैल से 90 डेज काउंट करके समझिए, जून, जुलाई एंड में, यानी 31 जुलाई को आपको देना है. दैट इज द लास्ट डेट. Yes, sir. ठीक है? तो उसमें क्या होगा? सॉरी, जून एंड में देना है, मानिए 1 जैन आपकी लास्ट डेट है. अगर आपने उस दिन नहीं दिया तो आपका जो लोन होगा वो एनपीए हो जाएगा. Yes, sir. मतलब जब भी ड्यू डेट रहेगी उससे 90 डेज जोड़ लीजिए तो लोन एनपीए हो जाएगा. और द सेम थिंग हैज बीन रिटन कि रीजन फॉर एनपीए क्या होता है कि भाई किसी ने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया था, लेकिन उसका बिजनेस चला ही नहीं. कुछ मार्केट के ऐसे फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, तो बिजनेस नहीं चला, तो वो लोन कैसे चुकाएगा? प्रॉफिट ही नहीं है उसको उसको कुछ. ऐसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, मैंने 4% पे लिया था और आज 8% इंटरेस्ट रेट हो गया, यानी डबल हो गया. तो ऐसे में कैसे लोन चुकाऊंगा? नहीं चुका पाऊंगा. तो मैं यही समझूंगा कि ना चुकाना ही मेरे लिए बेहतर है लोन, इसलिए वो एनपीए हो जाता है. और एसेट का क्लासिफिकेशन उनके जो ड्यूरेशन के बेस पे है, यानी 12 महीने या उससे कम के लिए अगर एनपीए है तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं. 12 महीने के लिए है कोई तो डाउटफुल एसेट कहते हैं, लॉस एसेट कहते हैं, जिसका कुछ अता पता नहीं है अपने. इस केस में क्या होता है अगर कोई लोन एनपीए होता है, तो अगर हम पहले रीजन देखते हैं कि एनपीए हुआ क्यों. अगर वो रीजन विजय माल्या जैसा होता है कि जानबूझ के सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, पैसा होते हुए भी, तो उसके लिए हमारे पास लीगल प्रोविजंस होते हैं कि हम उससे आके रिकवरी कर सकते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, दीज थिंग्स. और अगर वो बंदा सामने वाला ऐसा है कि जो लोन तो देना चाहता है बट मार्केट की कंडीशन ही नहीं है लोन देने लायक, यानी उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो लोन कैसे देगा? तो हम उससे निगोशिएट करते हैं, उसका लोन टेन्योर बढ़ाते हैं, उसका जितना भी पैसा है उसको फिलहाल हाफ ऑफ द मनी सेटल करने की, ऐसी कुछ चीजें होती हैं, उसके क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस की जाती है. और जैसे एनपीए होता है हर बैंक में, कुछ ना कुछ लोन तो एनपीए होगा. उसको क्या किया जाता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को दे दिया जाता है. ये कंपनीज बेसिकली बनाई ही इसलिए गई हैं कि ये जो लोन होगा कंपनीज के पास, मतलब जो एनपीए वाला लोन होगा, केवल उसको ये लेती हैं और रिकवरी करती हैं फिर. इसलिए ये लोन बनाया गया है, यानी कंपनी बनाई गई है एसेट रिकंस्ट्रक्शन का. साथ ही ये सरफाइसी एक्ट 2002 से पावर डिराइव करता है, यानी मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ रिकवरी कर रहा हूँ, तो मेरे को इस एक्ट के थ्रू पावर मिलेगी. नेक्स्ट इज बासेल 3 नॉर्म्स. बासेल 3 नॉर्म्स में क्या होता है? बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बासेल 3 नॉर्म्स. अब बासेल 3 नॉर्म्स एक कमेटी थी जो कि स्विट्जरलैंड में बैठ के कुछ डिसीजन लिए गए थे, जिसमें ऐसा डिसीजन लिया गया था कि अगर
वर्स्ट केस सिनेरियो में बैंकिंग यानी इकोनॉमिक में रिसेशन आ जाता है, बैंकिंग में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो आ जाती हैं, तो बैंक उनको हैंडल कैसे करेगा, ऐसे कौन कौन से रिस्क है, ये सब पॉइंट आउट ये किए। तो आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बासिल थ्री नॉर्म्स था क्या, क्या डिस्कशन हुआ था, और जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्रेडिट रिस्क क्या है, मार्केट रिस्क क्या है, ऑपरेशन रिस्क क्या है। व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? सी क्रेडिट रिस्क इज व्हाट, सपोज मैंने आपको कुछ पैसे लोन दिए, 100 रुपए दिए आपको लोन में। अब मेरे को ये रिस्क है कि कल को आप नहीं लौटाओगे पैसे, तो ये कौन सा रिस्क है? क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क जो कि मार्केट के फैक्टर के कारण जो एसेट की वैल्यू, सपोज मैंने होम लोन लिया, मेरी जो घर की कीमत थी यानी प्लॉट की कीमत थी जिसके अगेंस्ट मैंने होम लोन ले रखा है, 1 करोड़ रुपए थी, मेरे को 10 लाख रुपए लोन मिला है। लेकिन अब मार्केट में ऐसी फैक्टर्स आ गए हैं कि उसी जो 1 करोड़ की वैल्यू थी मेरे प्लॉट की, वो घट के 50 लाख हो गई, तो वो 10 लाख का लोन दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अगर 10 लाख का लोन 1 करोड़ के लिए दे रहा था, 50 लाख के लिए क्यों दूं मैं? नहीं दूंगा मैं, उस लोन को मैं रीपे नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ही नहीं है, वो वैल्यू ही नहीं बची है अब इसकी। या आप ऐसा समझिए, अगर वही जो 10 लाख लोन था और 1 करोड़ मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 9 लाख रुपए हो जाए और मैंने 10 लाख का लोन ले रखा उसके अगेंस्ट में, तो मैं नहीं दूंगा लोन, क्योंकि वैल्यू ही कम हो गई ना, मार्केट वैल्यू ही कम हो गई मेरी प्रॉपर्टी। और ये सब चीजें रिसेशन में होती हैं, जब बहुत खराब कंडीशन आ जाती है हमारी कंट्री में। फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या होता है कि अगर आप फील्ड प्रोसीजर, सिस्टम पॉलिसीज, एम्प्लॉय एरर, सिस्टम फेलियर, फ्रॉड्स, क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण ऑपरेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम जो है अभी नॉर्मल डे पे ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन कुछ फ्रॉड हो गया, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिस्क, वो भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी, एक फ्रॉड के अंदर आता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखती हैं। मेरे से उस समय 2021 के टाइम पे पूछा गया था क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है। बाकी आपको ये जानने की इच्छा है कि ये क्यों अप्लीकेबल है बासेल थ्री, तो यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई कल को बहुत सारी चीजें यानी कोई रिसेशन आ जाए कंट्री में और बैंकिंग पूरी डिसरप्ट हो जाएगी, लेकिन डिसरप्ट ना हो बैंकिंग इंडस्ट्री, उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% रखा गया है बासिल थ्री के रिकमेंडेशन में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब अगर आपके पास 100 रुपए डिपॉजिट आया है, यानी मैं एक ऐसी बैलेंस शीट अज्यूम कर रहा हूँ कि उसमें 100 रुपए ही डिपॉजिट है, तो आपकी जो टीयर वन प्लस टीयर टू कैपिटल है वो 100 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप बोलोगे ये टीयर वन टीयर टू है क्या? तो कॉमन इक्विटी टीयर कैपिटल यानी जो हम शेयर कैपिटल इंफ्यूज करते हैं बैंक बनाते समय। जैसे कल को आपको लगा कि आपको एक बैंक खोलनी चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कुछ अमाउंट तो लोन लोगे बैंक को खोलने के लिए कि ब्रांच खोलूंगा, 10 लाख की ब्रांच खोलनी है, 5 लाख आपने लोन लिया और 5 लाख आप खुद से मिलाओगे। तो वो जो 5 लाख आपने खुद से मिलाए हैं वो है शेयर कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। फिर आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक रिटेन ऑर्डर होते हैं जिसमें फिक्स
सम ऑफ मनी डिमांड में दिया जाता है एट अ सर्टेन टाइम, यानी जैसे चेक्स आपने देखे होंगे, डिमांड ड्राफ्ट्स आपने देखे होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल हैं। तो आपको याद रखना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, एग्जांपल। चेक क्या होता है, सी चेक क्या होता है, आपने चेक को कई बार तो यूज किया होगा, बट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसमें हम जिसको लेके हम पेमेंट करते हैं, या तो सेल्फ को पेमेंट करते हैं, या तो सामने वालों को पेमेंट करते हैं, या किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। कुछ फॉर्म दिए हुए हैं चेक के, यानी चेक कौन कौन से फॉर्म का होता है। पहला है बेयरर चेक। बेयरर चेक मतलब वो चेक में किसी का नाम नहीं लिखा होगा। जब आप चेक निकालोगे उसमें पैसा लिखोगे, साइन करोगे, सब कुछ करोगे, बट किसी का नाम नहीं लिखोगे किसको पैसे दे रहा हो, उसको हम बोलते हैं बेयरर चेक। वो अगर कल को वो चेक आपसे गुम गया, आपने वो चेक में सब कुछ कर दिया है, नाम भी नहीं लिखा है और अमाउंट भी लिख दी है और साइन भी कर दिए हैं, और कल को वो गिर गया कहीं, रोड में गिर गया, और कोई जानवर भी उसको ले जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले जा रहा हूँ, समझिए कोई एनिमल उस चेक को ले जाए तो भी चेक का पैसा उसको मिल जाएगा। बेयरर चेक इतना खतरनाक होता है, उससे ना कुछ आधार कार्ड पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, अगर चेक देखा है तो पैसा दे दो। ऑर्डर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक मतलब होता है इन सच अ चेक द वर्ड पीरियड में बी कट आउट और कैंसल एंड द वर्ड ऑर्डर में भी रिटर्न, यानी द पे कैन ट्रांसफर एन ऑर्डर चेक टू समवन एल्स बाय साइनिंग हिज और हर नेम ऑन बैक ऑफ इट। ऑर्डर आप लिखोगे नाम काट के और पीछे नाम लिख दोगे चेक के पीछे। खैर आपको इतनी इनडेप्थ इंफॉर्मेशन इसकी नहीं रखनी है, बस टाइप जान लीजिए। क्रॉस चेक क्या होता है, क्रॉस चेक में क्या होता है, अगर आपने मेरे को चेक दिया अपने कॉपी से निकाल के और क्रॉस कर दिया, यानी दो क्रॉस डंडी खींच दी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, तो उस चेक में जितनी अमाउंट लिखी होगी वो मैं केवल अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता हूँ, कैश नहीं ले सकता मैं। इसको बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। फिर कुछ सेल्फ चेक होता है, पोस्ट डेटेड चेक होता है, बैंकर्स चेक होता है, स्टेल चेक मतलब बासी चेक, यानी 3 मंथ से ज्यादा अगर है चेक की डेट, अगर आज की है और आज से 3 मंथ बाद, वो चेक को स्टेल चेक बोला जाता है। सेल्फ चेक क्या होता है, अगर आप देखिए एनआईवीएम में आपका हो गया और फिर आप जाओगे फीस जमा करने, तो उसके लिए एक आरटीजीएस का फॉर्म भराया जाएगा, और उसके नीचे एक सेल्फ चेक, यानी आप अपनी बुक से चेक चेक निकालोगे, अमाउंट लिखोगे, साइन करोगे, और जहां लिखा रहता है टू, मतलब किसको आप पैसे दे रहे हो, तो टू में लिखोगे सेल्फ, मैं खुद को पैसे दे रहा हूँ, और लेफ्ट के पीछे अटैच करोगे, और वो नेफ्ट में जो रहेगा कि आप किसको पैसे देना चाहते हो फॉर्म में, तो आप लिखोगे एनआईबीएम को पैसे देना चाहता हूँ, उसकी पूरी डिटेल्स रहेगी। पीछे चेक आपका लगा होगा, तो पूरा पैसा आपका अकाउंट से एनआईबीएम के खाते में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डिमांड ड्राफ्ट। व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट, तो चेक की तरह ही डिमांड ड्राफ्ट होता है, बट इसमें क्या होता है कि देखिए आपने सुना हो कभी ना कभी चेक बाउंस हो जाता है, लेकिन डिमांड यस ड्राफ्ट सर। कभी कभी बाउंस नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप जाओगे कल सुबह बैंक जाओगे कि सर मेरे को डिमांड ड्राफ्ट दे दो 100 रुपए का, तो पहले वो चेक करेगा आपके अकाउंट में 100 रुपए है कि नहीं। अगर है तो डिमांड ड्राफ्ट आपको काट के दे देगा एक पर्ची, और आप वो डिमांड ड्राफ्ट ले जाओगे यूनिवर्सिटी, वहां जमा कर दोगे, तो वो पैसा मिल जाएगा यूनिवर्सिटी को। यानी क्या हुआ, इसमें पहले वो चेक कर रहा है बैंक कि बैंक में है कि नहीं 100 रुपए आपके, अगर 100 से ज्यादा है तब तो आपको जाके डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा वो। अगर आपके बैंक में 90 रुपए है और आप 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लेने गए हो तो नहीं करेगा। लेकिन चेक के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए चेक बाउंस होता है। तो क्या डिफरेंस है चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट में।
सर डिमांड ड्राफ्ट तभी इश्यू होता है जब आपके अकाउंट में उतने पैसे हो, मतलब जब भी आप उसको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाओगे तो वो पहले चेक करेगा तो आपके अकाउंट में कि इतने पैसे है या नहीं, वो तभी बना के देगा, इसलिए बाउंस नहीं होता है, और चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट चेक इज अपन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट इज चेक ट्रंकुएशन सिस्टम। आज से 10 साल पहले की बात है। पहले क्या होता था कि आप चेक जमा करने गए तो आप 10 बजे चेक जमा करने गए उसी बैंक की ब्रांच में। मैं गया शाम के 5 बजे चेक जमा करने। तो आपका और मेरा और उसके बीच में जितने भी चेक आए होंगे वो सब एक साथ रख लिए जाते थे बैंक की ब्रांच में। ये 10 साल पहले की बात। फिर शाम के 6-7 बजे के आसपास एक गाड़ी आती थी जिसमें सारे चेक्स अंदर रखे जाते थे और वो जाते थे नियरेस्ट क्लियरिंग हाउस में, जहाँ चेक क्लियर होते हैं, यानी कि जहाँ चेक का पैसा मिलता है। फिर वो जाके वहाँ गाड़ी जाती थी, फिर वो चेक धीरे धीरे क्लियर होते थे, फिर वो अमाउंट किसी के बैंक में आता था। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि आज की डेट में MICR मशीन्स आ गई, यानी चेक ट्रंकुएशन सिस्टम की मशीन्स आ गई हैं। उनको हम इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें ये हर बैंक की ब्रांच में आपको ये मशीन मिल जाएगी। आप जाओगे कल सुबह चेक जमा करने तो चेक लेंगे आपके हाथ से और उस मशीन में डाल देंगे, और वहीं की वहीं पूरी डिटेल्स उस चेक से मशीन के अंदर होते हुए उनके कंप्यूटर पे शो हो जाएगा और आपका बैंक डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा तुरंत। गेटिंग दिस थिंग? ऐसे यस काम सर। करती है चीज। नाउ फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक वी विल लीड टुमारो। एनी डाउट यू हैव टिल नाउ? सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बार फिर बता देते सर। सी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मतलब निगोशिएट कर सकते हो वैसा बोल रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जितना आपने लिखा है उसमें अमाउंट उतना तो देना ही पड़ेगा। गेटिंग दिस थिंग? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ये सीधे चेक। तो हाँ यस सर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो ऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक फिक्स सम, एक फिक्स डेट या फिक्स टाइम में हम देते हैं। यानी चेक में आप लिखते हो अमाउंट यानी फिक्स सम, डेट लिखी होती है ऊपर यानी फिक्स डेट, साइन होता है, आप दे सकते हो, नाम लिखा होता है किसको देना है किसको देना है, उसको आप दे सकते यस सर। हो। सेम इज लाइक डिमांड ड्राफ्ट, सेम इज लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस सर। एनी डाउट यू हैव टू नो? नो सर। व्हाट इज मार्केट रिस्क? सर मार्केट रिस्क इज द रिस्क when the value of the property against which we have borrow the money from any bank is decreased. Like if we put the plot as a collateral and the uh, price of plot is decreased, then it is called market risk. No, no, this is not market risk. You do research. I am saying this is example. This is an example. Getting this thing. Yes, sir. But when I am asking what is market risk, you don't have to say this example. You have to say definition. Yes, sir. So market risk is what? Due to the market's fluctuation, this risk arises. Don't straight away say the exam. Getting this? Yes, sir. Thank you very much for joining. So Thank you, sir. for tomorrow, the topic is 5 trillion economy. 5 trillion economy. Yes, sir. 5 trillion economy.